ہے، پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم کر. اچھا صاحب، خدا عادل ہے. واقعہ یہ ہے کہ اچھا ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کی تشریح کیجیے. چلیے صاحب اب یہی ہو جائے تھوڑا سا. تو خدا واقعا عادل ہے، ابھی ہم طے کر کے بیٹھے کہ عادل ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر رحم فرما، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ پروردگار ہمارے ساتھ عدل سے معاملہ نہ کر، ہمارے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کر. اس لیے کہ اگر واقعاً عدل کرنے پہ وہ آ گیا تو انبیاء و مرسلین اور معصومین کے علاوہ کچھ چھوٹے گا نہیں. تو اس لیے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے فضل کا معاملہ کر، اپنے عدل کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر. اگر ایک بچہ ایک اسلامی، اچھا وہ دوسرا سوال رہ گیا صاحب، عبادت والا مسئلہ. جناب روزے میں نہیں معلوم آپ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اپنا حال تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی بھول بھال جاتا ہے. تو اب عبادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھائی دیکھیے، عبادت کے معنی ہے ورشپ، پوجا. اب پوجا کے معنی کیا ہے؟ کچھ دیر کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے یا ہفتے میں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے معبود یا اپنے بت کے سامنے کچھ مراسم کا بجا لانا، یہی عبادت. اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ بت پرست جو ہے وہ بت کے سامنے جاتا ہے. اہل کتاب میں سے عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے جھکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ عبادت ہے. مسلمان جو ہے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو سارے ادیان میں، دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اسلام چھوڑ کر، ان سارے ادیان میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر اپنے معبود یا اپنے بت کے سامنے کچھ مراسم کا بجا لانا، یہ ہے عبادت. جبکہ اسلام میں یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ چیز عبادت نہیں. اچھا تو اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت ہے اوامر و نواہی کی اطاعت کرنا. احکام 5 ہیں اور چھٹا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حکم کا. اس کو کرو، نہیں کیا تو مار پڑے گی، یہ ہے واجب. اس کو کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، مستحب. اس کو مت کرو، اگر کیا تو مار پڑے گی، حرام. اس کو نہ کرو تو اچھا ہے، اور اگر کر لیا تو ہم ماریں گے نہیں، مکروہ. 4 قسم ہو گئی: واجب، مستحب، حرام، مکروہ. اور اب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، مباح. اچھا. دنیا کا کوئی عمل انسان کا ان 5 احکامات سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا. اچھا اب میں، عجیب و غریب بات ہے اور یہ سننے والی ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ امام نے اس سے پوچھا کہ بھئی اتنے دن غائب کہاں رہے، بہت دنوں کے بعد آئے. تو کہنے لگا کہ فرزند رسول مکان بنوا رہا ہوں. ان کا اچھا تو مکان تو تھا پہلے سے موجود. کہا کہ ہاں میں نے 1-8 کمروں کا اس کے اندر اضافہ کیا ہے تاکہ رہنے میں سہولت ہو جائے، اور اگر آپ کے قدم وہاں پہ آ جائیں تو میرے لیے باعث برکت ہو. ان کا ٹھیک ہے چلیں گے. امام کو لے کر وہ اپنے گھر میں آیا، دکھلایا کہ بھئی یہ کمرے کا اضافہ کیا میں نے، اور یہ فرش ہے اور یہ دیواریں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک روزن تھا، روزن سے مراد دریچہ، کھڑکی. تو امام اسے دیکھنے لگے. اس نے کہا کہ فرزند رسول میں نے یہ دریچہ اس لیے بنایا کہ اسے تازہ ہوا آئے تاکہ صحت جو ہے وہ اچھی رہے. تو آپ نے عجیب و غریب جملہ کہا، اور خدا کی قسم واقعا اس قابل ہے کہ ذہن کے اندر محفوظ رکھا جائے. فرمانے لگے کہ اگر تو نے اس دریچے کو اس نیت سے بنایا ہوتا کہ جب صبح ہو تو ذرا سی روشنی آ جائے اور میں اٹھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لوں اور نماز پڑھ لوں، تو یہ دریچہ بنوانا تیرا جو ہے وہ عبادت ہو جاتا. اچھا تو اب میں اس واقعے سے رزلٹ کیا نکالنا چاہ رہا تھا؟ آپ کے اختیار میں دنیا میں کہیں عبادت اتنی سستی نہیں ہے جتنی عبادت اسلام میں سستی ہے. آپ کے اختیار میں کہ آپ اپنے عمل کو مباح رکھیں یا اپنے عمل کو مرضی الہی کے مطابق بنا کر عبادت کر لیں. کسب معاش کرنا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اگر صبح کو آپ کسب معاش کرنے کے لیے اس لیے نکل رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو بیوی مانگے گی شام کو اور بچہ مانگے گا شام کو، تو یہ ایک عمل مباح ہے. اور اگر آپ یہ نیت کر کے صبح کو نکل رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بال بچوں کا نفقہ کما کے لاؤں، تو اب یہ اللہ کا حکم جہاں ذہن میں آیا وہاں عبادت ہو گیا. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں جو ہفتے میں 1 دن یا
24 घंटे में से थोड़ा सा वक्त खुदा को या माबूद को या बुत को दिया जाता है, तो ये है खुदा को याद करने की रस्म। यानी दूसरे मजहबों में अल्लाह को याद किया जाता है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं आपसे कि इस्लाम में अल्लाह को याद नहीं किया जाता, इस्लाम में अल्लाह को याद रखा जाता है। याद वो करता है जो पहले भूल गया हो, और याद रखना मुसलसल एक अमल है। तो अपने हर अमल में अगर परवरदिगार आलम की मर्जी को आप सामने रखेंगे तो आप गोया इबादत कर रहे हैं। यह है मफ़हूम इबादत। अगर एक बच्चा एक इस्लामी घराने में पैदा होता है तो उसके सामने इस्लामी नुक्ते निगाह होगा और वो उस पर अमल करेगा, क्योंकि उसके गिरद पेश का माहौल उस तरह का होगा। और अगर एक बच्चा हिंदू मजहब में पैदा हुआ तो उसका माहौल उस तरह का होगा, तो क्या उसके साथ अदल होगा? अच्छा जनाब, असल में मसला ये है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अमर यह है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो कहता है कि कुन हो जा, फयकून वो हो गई। अच्छा, ये तर्जुमा ही दुरुस्त नहीं है। फयकून वो हो गई, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। यकून से अगर मुदारे है वो होने लगती है, यानी प्रोसेस में आ जाती है होने के। और यही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है, यानी इर्तिका का नजरिया भी यही है जो ये इस यकून के एक छोटे से जुमले के अंदर पोशीदा है। तो परवरदिगार ने इस कायनात को बनाया, और बनाने के बाद चूंकि ये दारुल इम्तिहान है और दारुल तकलीफ है, इसलिए हर एक को आजाद छोड़ दिया। अब जो अपने लिए जैसा दीन चॉइस करे, जो अपने लिए जैसा दीन मुंतखब करे, परवरदिगार उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं फरमाता। अच्छा, जब परवरदिगार उसके अंदर मुदाखलत कोई नहीं फरमा रहा है, तो अब एक हिंदू घराना है, एक मुसलमान घराना है। मुसलमान घराने में पैदा होने वाला जाहिर है कि इस्लामी अमल करेगा, हिंदू घराने में पैदा होने वाला हिंदू अमल करेगा। मसला सारा ये है कि वो जो 24 घंटे अपने कस्बे माश में लगा हुआ है और 24 घंटे दुनियादारी के अंदर लगा हुआ है, क्या उस हिंदू ने या उस गैर मुस्लिम ने 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे सिंसियरली 24 घंटे में से निकाले अपने अल्लाह को रिसर्च करने के लिए और सही दीन मालूम करने के लिए? तो दुनिया का कोई ऐसा माकूल आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि जनाब हमने बड़ा अच्छा वक्त दिया दीन को समझने के लिए और दीन फिर भी समझ में नहीं आया। तो परवरदिगार ने दुनिया को पैदा किया, यकून, और वो होने लगी, और हर इंसान इस मुआशरे में आजाद पैदा हुआ। कोई हिंदू बना, कोई यहूदी बना, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना। अच्छा, अब मुसलमानों पे हम अलग बहस करेंगे, ये हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह जो दूसरे मजहबों में गए उन पे हम पहले बहस कर लें। ये जो हिंदू ईसाई और यहूदी वगैरह बनते रहे, तो ये अपने मुआशरे के प्रेशर के तहत बने। अब उनका फरीज़ शरई ये है कि वो अपने वक्त के कुछ हिस्से को सही दीन की तहकीक पर लगाएं और सही दीन की तहकीक करें। तो मुझे यकीन कामिल है कि अगर संजीदगी के साथ और गैर जानिबदारी के साथ रिसर्च की जाए, दीन को समझने की कोशिश की जाए, तो इंसान वही पहुंचेगा जहां इस्लाम पहुंचाना चाहता है। तो अगर वो तहकीक नहीं कर रहा है तो दोहरा गुनाह कर रहा है। एक तो यह कि वो तहकीक नहीं कर रहा है, और दूसरी यह कि उन अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है जो परवरदिगार आलम ने दिए। तो परवरदिगार आलम का अदल इस सिलसिले में यह है कि परवरदिगार ने आपको खल्क किया, हिदायत के जरिए दे दिए, जिंदगी के सारे वसाइल दे दिए, और आपको बिल्कुल मुख्तार बनाया कि उसके दीन को आप कबूल कर सकें। अगर वो आपके दिल पे मोहर लगा देता, जैसा कि बाद आयतों में है कि उन्होंने ऐसा किया तो हमें दिल पे मोहर लगा दी, अगर मोहर लगाया हुआ पैदा कर दिया होता तो आप कह सकते थे कि उसने जुल्म किया। तो चूंकि मोहर लगाया हुआ पैदा नहीं किया है, इसलिए परवरदिगार ने ऐन अदल के मुताबिक आपको इस दारे इम्तिहान में ब्लैंक पेपर के तरीके से रख दिया है। अब चाहे आप उस पर इस्लाम लिख लें, चाहे उसके ऊपर यहूदियत लिख लें। अब ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि साहब वो यहूदी घर में पैदा हो गया, तो भाई ये तो मुआशरे का प्रेशर है कि वो यहूदी घर में पैदा हो गया। लेकिन यहूदी घर में पैदा हो जाना ये मतलब तो नहीं है कि वो इस्लाम पे तहकीक न करे या ईसाइयत पे तहकीक न करे। तो हर इंसान के लिए परवरदिगार ने ये तय किया है कि वो जब तक तहकीक न करे उस वक्त तक उसे उसका अजर नहीं मिलेगा। अब ये तो खुशकिस्मती है आपकी कि आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए, लेकिन आप भी इम्तिहान से बचे नहीं। देखिए, अब उसकी भी एक मिसाल सुनते जाएं। हर सवाल एक पूरी तफसील चाहता है, और जाहिर है पूरी तफसील का वक्त नहीं है, तो 2 जुमलों में सुनते जाएं। वो ये है कि अगर आपको याद हो तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का पहला अनाउंसमेंट किया, पहला ऐलान, तो उसमें फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, जन्नत की जमानत मैं देता हूं, नजात मिल जाएगी। भाई कभी आपने गौर किया कि कितनी सस्ती थी जन्नत? किसी जबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत मिल गई। और आज कितनी महंगी है जन्नत, जिंदगी भर हमारो नमाज पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, मुत्तकी हो जाके हज करो, यानी कितने अहकामात हैं, तो फंस गए ना। और उस वक्त कितनी सस्ती थी कि सिर्फ जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की जमानत हो गई। तो आप यकीन कीजिएगा कि वो भी सस्ती नहीं थी, वो बुतों का मुआशरा,
बुत परस्तों का मुआशरा, उस मुआशरे में ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने का मतलब क्या था? शौहर बीवी से अलग हो जाए, बीवी शौहर से अलग हो जाए, खानदान से कट गए, मुआशरे से कट गए, हुक्का पानी बंद हो गया, सोशल बाइकाट हो गया। तो परवरदिगार ने उसका इम्तिहान लिया मुआशरे से अलग होने पर, और हम पैदा हुए मुसलमान घराने में, तो अब हमारा इम्तिहान क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से होगा? नहीं, अब हमारे इम्तिहान के लिए नमाज आया, हमारे इम्तिहान के लिए रोजा आया, हमारे इम्तिहान के लिए हज आया, और सारे अहकामात आए कि तुम इन इम्तिहानों से कामयाब हो तो जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं तो जन्नत के ठेकेदार हैं, और जन्नत तो हमारे बाप की जागीर है, तो इस खुशफहमी में न रहिएगा जब तक आपके पास ईमान और अमल सारे दोनों साथ में न हो। और ये है अल्लाह का आदम। लफ्ज़े या बमानी अरबी मौजूद हूं साहब, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए इसके मुतालिक मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना शिर्क में शुमार होता है, जबकि अल्लाह ने खुद फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। क्या यह शिर्क नहीं है? वजाहत करें, बात बहुत माकूल है, नहीं वाकई माकूल सी बात है। अच्छा भाई, तो यह शिर्क क्या है? शिर्क की भी बड़ी किस्में, शिर्क फिल उलूहियत और शिर्क फिल इबादत और शिर्क फिल ताअत वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अब वो सारी किस्में लेके अगर बैठ जाऊं तो फिर वो एक सवाल में पूरा वक्त निकल जाए। तो जनाब, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं खुदा की किसी जात में या खुदा की किसी सिफत में किसी गैर खुदा को, मासे अल्लाह को शरीक कर देना, मुस्तकिल बिस्तार। अच्छा, अब यहां पे आप रुकें ताकि ये बात जो है समझ में आ जाए। एक दहरिया है जो खुदा को नहीं मानता, उस दहरिया ने कहा कि मियां बारिश हुई और ये फल फूल उग के आ गए। अच्छा, बात तो माकूल है ना, बारिश हुई और ये पौधा उगाया, सब्जा उग गया और फल निकल आए, फूल निकल आए। एक मुसलमान ने कहा कि बारिश हुई और बारिश ने सब्जा उगा दिया। इन दोनों जुम्लों में फर्क क्या है? दहरिया कहता है कि बारिश से सब्जा उगा, मुसलमान कहता है कि बारिश से सब्जा उगा। जो जुमला दहरिये ने कहा है वो ऐन शिर्क है, अब ऐन कुफ्र है, इसलिए कि वो खुदा को तो मानता नहीं ना, बारिश को वाकई हकीकी सबब समझता है सब्जे का, इसलिए ये जुमला ऐन कुफ्र है। और जब मुसलमान ने कहा कि बारिश हुई सब्जा उगा, तो चूंकि मुसलमान खुदा को मान रहा है तो पहले से यह तय है कि इस बारिश को खुदा ने बरसाया है, तो यही जुमला ऐन ईमान हो गया। तो जो जुमला दहरिये की जबान से ऐन कुफ्र था, वही मुसलमान की जबान से ऐन ईमान हो गया। अगर ये बात वाज़ेह हो गई हो तो फकत एक जुमले में आप इस सवाल का जवाब सुन जाएं कि भाई, अगर खुदा से हटकर मुस्तकिल बिज़ात किसी ख्वाहिश पर आप अमल कर रहे हैं और किसी हुक्म की इताअत कर रहे हैं तो यह शिर्क भी है और कुफ्र भी है। लेकिन वही खुदा जो कहता है कि किसी और को सजदा न करो, अगर वो किसी और के सामने झुकवा दे तो यही ऐन ईमान है और ऐन इताअत है और ऐन तौहीद है कि आपने खुदा के हुक्म को माना। बल्कि मैं उलट के बात कह दूं, भाई इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, बहुत दकीक मंजिल है। इब्लीस ने कहा सजदा नहीं करूंगा, गैरुल्लाह है ना, आदम अलैहिस्सलाम तो गैरुल्लाह है, उनको सजदा करवाया जा रहा है। तो इब्लीस का सजदा न करना शिर्क है, सजदा करना ऐन ईमान था। इसलिए कि फकत जात को मान लेना काफी नहीं है जब तक उसकी बात को भी ना मानो, यानी खुदा के जात को तस्लीम कर लेना काफी नहीं है जब तक उसके कौल को भी तस्लीम न करो, उसके हुक्म को भी तस्लीम न करो। तो ऐन तौहीद है खुदा को एक मानना और खुदा के हर हुक्म पे अमल करना। तो अगर